students, in last video we already completed till multiplication trick. Okay, today we will start on page number 134. Some questions are there. How many in all? First question is the Almirah has 4 shelves. There are 5 books in each itself. How many books are there in Almirah? See here in this cupboard you can see the 4 shelves are there, right? In one shelf total 5 books are there. Count the books. Then how many books in all? You have to find how many books are there. Okay, so what to do? First you have to find 4 shelves. It means how many shelves are there? 4. So 4 multiply by in each shelves how many books are there? 5. So 4 multiply by 5 is equal to 20 books. Okay, so this is the example. I will show 2 and you have to show 2 in homework. Okay. First one is a shirt has 5 buttons. How many buttons would 3 shirts have? See here, a shirt has 5 buttons, right? So how to do? One shirt has 5 buttons. So here how many shirts are there? 3 shirts. So 3 shirts have buttons is equal to how many? So what to do? You have to do cross multiplication. 3 multiply by 5. I already told you 3 multiply by 5. This one will be go on division, right? नीचे जाएगा, 1 की कोई वैल्यू नहीं रहेगी. 3 multiply by 5 is equal to 15 buttons. कितने? 15 buttons. Okay, understood this? Okay, now our next question is there are 4 fans. Each fan has 3 blades. This I already explained you in the starting with example. What is the total number of blades in all? So one fan, right? One fan has blades is equal to 3. कितने ब्लेड होती है एक फैन को? 3 blades. Okay, so here how many fans are there? 4 fans. So 4 fans have blades is equal to how many? So 4 multiplied by 3 is equal to 12. So your answer is 12. Understood? Okay. This next you have to do yourself in your homework. Okay. Now our next is sum multiplication fact. I already told you regarding this multiplication fact that any number you multiply, the answer will be same. अगर मैं करती हूँ आप करते हो आंसर सेम ही रहेगा, उसको मल्टीप्लीकेशन फैक्ट बोलते हैं. 8 मल्टीप्लाई बाय 3 करो तो 24 आता है. 3 मल्टीप्लाई बाय 8 करो तो भी 24 ही आता है. सो दिस आर द मल्टीप्लीकेशन फैक्ट. उसको उल्टा करो तो भी आंसर सेम रहेगा. आई ऑलरेडी एक्सप्लेन यू इन द वर्कशीट एंड ऑल्सो इन द जूम क्लास. नेक्स्ट इज हाउ मल्टीप्लाइंग बिग नंबर्स. हियर वन मेथड इज दैट column method. Which one? Column method. This method will also come in 4th standard. It will be there. It will be called as split method. Here you have to use the word column method. Right? In column method, what to do? I will give you show you with one example. If bigger number are there, suppose first we will start with smaller number. Here 23 multiplied by 4 is there. Here one example is there. In a picnic 4 fruits were given to each students. The number of students were 23. 23 students से एक को 4 fruits दिया जाता है. तो 23 multiplied by 4 करेंगे. So if we are using column method, so how to do? First we will distribute this 23. We will separate 23 as it is 20 or 3. Can we write this in this way? 20 plus 3, right? Okay. Next here again we will make one column. Here I will write 4. यहाँ पे 4 है तो मैं 4 यहाँ पे लिखूंगी.
So what to do in column method? You have to multiply 4 with 20. 4 को 20 से मल्टीप्लाई करना है, 4 को 3 के साथ भी मल्टीप्लाई करना है. तो 4 मल्टीप्लाई बाई 20 एंड 4 मल्टीप्लाई बाई 3. ओके, सो 4 20 जा 24 जा 80 होता है. अगर नहीं आता है तो मैं आपको सिखा देती हूँ. पीछे जितने जीरो होते हैं तो जीरो लगा लो और 2 4 जा 8. 4 3 जा 12 आपको आता ही है 4 का टेबल. अब नाउ व्हाट टू डू, यहाँ पे जो आंसर आता है 80 और 12 उसका हम प्लस करेंगे. तो 80 प्लस 12 इज इक्वल टू 92. सो योर आवर आंसर इज 92. इफ यू विल डू विथ 23 मल्टीप्लाई बाय 4 सिंपली करोगे तो भी 92 ही आंसर आएगा. बट इफ आई आस्क इन एग्जाम डू द सम, do the multiplication with column method, so you have to use this method only, otherwise your answer will be wrong only. Okay, and if I will ask that find the product, product means multiplication. What is the other name of product? Multiplication, मल्टीप्लीकेशन का दूसरा नाम प्रोडक्ट है. अगर मैं पूछूं कि फाइंड द प्रोडक्ट तो आपको मल्टीप्लीकेशन ही करना है. और इफ आई विल आस्क दैट डू द मल्टीप्लीकेशन विथ कॉलम मेथड, देन यू हैव टू डू दिस मेथड ओनली, अदरवाइज योर आंसर विल बी रॉन्ग. ओके, सो दीज आर द स्मॉलर नंबर. Okay, I will show you with one example with bigger number. One example is also given here. 92 answer is right. Okay, next is here practice time is there. I already sent you the worksheet of this practice time, right? So I will show you how to do this practice time work. First 42 multiply by 23. So bigger number is there. So how to do with column method, right? Here you have to use column method. So first 42 means 40 or 2. Can we write over here like this? Yes, 40 or 2. 23 we will write over here. 20 plus 3. तो 20 plus 3. तो यहाँ पे हम column बनाएंगे. Okay. अब 20 का मल्टीप्लीकेशन 40 के साथ, 20 का मल्टीप्लीकेशन 2 के साथ, फिर 3 का मल्टीप्लीकेशन 40 के साथ, 3 का मल्टीप्लीकेशन 2 के साथ. तो यहां पे मैं लिखूंगी 20 मल्टीप्लाई बाय 40, फिर 20 का 2 के साथ 20 मल्टीप्लाई बाय 2, फिर 3 का 40 के साथ, तो 3 मल्टीप्लाई बाय 40 एंड 3 मल्टीप्लाई बाय 2, 3 का मल्टीप्लीकेशन 2 के साथ, 1 बाय 1, यहाँ का यहाँ से, यहाँ का यहाँ से, फिर इसको ले लो, इसका यहाँ से, इसका यहाँ से, फिर यहाँ पे हम टोटल करेंगे, मल्टीप्लीकेशन करेंगे. 20 मल्टीप्लाई बाय 40. तो कैसे करना है देखो, जितने जीरो है वो उतने पीछे लगा लो, पीछे लगाना है. फिर आगे क्या लगेगा, तो 4 2 जा 8. 22 जा 40 होता है, जीरो लगा दिया, 2 2 जा 4, 10 0 3 4 जा 12, 120 आएगा, 3 2 जा 6. Now what to do? You have to do the total of this 800 plus 40 plus 120 plus 6. Here I am doing this addition. 800 plus 120 plus 40 plus 6. Okay, what will be your answer? 0 plus 0 plus 0 plus 6 is equal to 6. 4 plus 2 6. 8 plus 1 9. So your answer is 966. अगर आप सिंपली इसका मल्टीप्लीकेशन करको करोगे तो भी आपका आंसर 966 ही आएगा. बट यू हैव टू डू मल्टीप्लीकेशन इन दिस कॉलम मेथड बाय यूजिंग कॉलम मेथड. ओके, अंडरस्टूड? नाउ सी हियर, I already do the addition here. 966 is your answer. So 42 multiplied by 23 is equal to 966. This you have to do yourself, all the things. Okay. And here some one example is also given over here. Now word problem is there. First guess an answer and then calculate. A flower has 5 petals. A bunch of flower has 13 flowers. How many petals are there in the bunch? देखो यहाँ पे 5 flowers है टोटल, right? A flower has 5 petals. Sorry,
एक फ्लावर को 5 पेटल्स है, देखो यहाँ पे, लेकिन कितने फ्लावर है? 13 फ्लावर्स। कितने हैं? 13 है। सो व्हाट टू डू हियर? यू हैव टू डू मेंटली 13 मल्टीप्लाई बाय 5. 13 5 जा, right? 13 5 जा 65. Your answer will be 65 only. Next, a book has 64 pages. What will be the total number of pages in 8 such books? एक बुक को 64 पेजेस है। कितने? वन बुक को 64 पेजेस है, तो 8 बुक को कितना होगा? तो आपको क्या करना है यहाँ पे? 8 मल्टीप्लाई बाय 64। यहाँ पे आपको नहीं आता है मल्टीप्लीकेशन, 8 का टेबल नहीं आता है, तो आपको क्या करना है? कॉलम मेथड यूज करके आप 8 मल्टीप्लाई बाय 64 करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। दिस यू हैव टू डू योरसेल्फ, दिस 2 प्रॉब्लम्स। ओके, नाउ नेक्स्ट वन इज मल्टीप्लीकेशन पैटर्न। देखो यहाँ पे एक मल्टीप्लीकेशन पैटर्न दिखाई दे रही है। 9 का टेबल है, देखो 9 का टेबल है, उसमें देखो कैसे किया है। अगर आपको वो पता ही होगा कि 9 का टेबल कैसे बनता है, अगर नहीं आता है तो देखो 0 1 2 3 4, यहाँ पे 5 आएगा, फिर 6 आएगा, 7 आएगा, 8 आएगा, 9 आएगा। फिर इसको उल्टा ऊपर करना है, उल्टा यहां से 0 से स्टार्ट करना है। 0 1 2 3 4 ऐसे आएगा, राइट? तो यहाँ पे 90 पे आ गया, तो यहाँ पे 0 1 2 3 और 4। तो अभी ये पैटर्न अभी दूसरी बनती है। यहाँ पे देखो 0 प्लस 9 तो 9 होता है। फिर दूसरा 18 आया, तो 18 कैसे आया? 1 प्लस 8 इज इक्वल टू 9, तो दोनों का सम किया तो भी 9 आया। 2 प्लस 7 करो, 2 प्लस 7 करो तो भी 9 आएगा। 3 प्लस 6 करो तो भी 9 आएगा। 4 प्लस 5 करो तो भी 9 आएगा। हियर 54 इज देयर, तो 5 प्लस 4 करोगे तो भी 9 आएगा। फिर 63 इज देयर, 63, तो 6 प्लस 3 इज इक्वल टू 9, तो यहाँ पे टोटल 9 ही आएगा। ओके, नेक्स्ट इज कंप्लीट द ग्रिड बाय मल्टीप्लाइंग द नंबर्स। यहाँ पे आपको ग्रिड कंप्लीट करनी है। यहाँ पे 3 का, ये 1 का टेबल लिखा है, फिर 2 का लिखा है, ये 3 का लिखा है, यहाँ पे हम 4 का लिखेंगे। 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 4 4 जा 16, 4 5 जा 20, 4 6 जा 24, 4 7 जा 28, 4 8 जा 32, 4 9 जा 36 एंड 4 10 जा 40। अभी यहाँ पे 5 का टेबल खत्म करना है। 5 2 जा 10, 15 20 25 30 35 40 45 एंड 50, ऐसे ही आपको खत्म करना है। नाउ लुक एट द क्रॉस इन योर ग्रिड। देखो यहाँ पे आपको एक क्रॉस दिखता है, ठीक है? तो ये क्रॉस में आपको एक पैटर्न बनती है। कैसी पैटर्न बनती है? देखो, ये तीनों का टोटल करो और ये तीनों का टोटल करो, सेम ही आएगा। देखो, ठीक है? 3 प्लस 6 प्लस 9, 3 प्लस 6 प्लस 9 इज इक्वल टू 18 आया। यहाँ पे 4 प्लस 6 प्लस 8 करो तो भी 18 ही आएगा। अभी दूसरा कोई भी ले लो, मैं ऐसा लेती हूँ, यहाँ पे लेती हूँ 8, 18 वाला यहाँ पे ऐसे करूंगी और ये ऐसे करूंगी, ठीक है? तो मैं ऐसे लिया, तो 8 प्लस 16 प्लस 24 करो, 8 प्लस 16 प्लस 24 करो, और यहाँ पे 14 प्लस 16 प्लस 18 करो, 14 प्लस 16 प्लस 18 करो। तो कौन सा आपका आंसर आएगा बताओ मुझे। चलो यहाँ पे आपको फाइंड करके बताना है कि कौन सा आंसर राइट होता है। देखो यहाँ पे 8 प्लस 6 14, 14 प्लस 4 18 का 8 कैरी 1, 2 प्लस 1 3, 3 प्लस 1 4, 48 इज योर आंसर। 4 प्लस 6 10, 10 प्लस 8 18, 18 का 8 कैरी 1, 1 प्लस 1 2, 2 प्लस 1 3, 3 प्लस 1 4, 48 आ गया। दोनों का सेम आंसर, कोई भी आप सर्कल ले लो, आपका आंसर सेम ही आएगा, राइट? तो यहाँ पे एक पैटर्न है, ये जो है ये आपको स्किप करना है, ये आपको नहीं करना है, एग्जाम के लिए भी नहीं करना है। और यहाँ पे आपको कोई भी आपका मल्टीप्लिकेशन टेबल जो फेवरेट है वो मल्टीप्लिकेशन टेबल आपको यहाँ पे लिखना है। तो यहाँ पे हमारा चैप्टर खत्म होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम दूसरा चैप्टर करेंगे। ओके, थैंक यू।